یہ 3 days ہوں گے اس ویک میں. ڈے 1 جو ہے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس MCQs. MCQs ہوتے کیا ہیں اور MCQs کے جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں تو ان پر تفصیلی بات کریں گے کہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں یا پارٹس MCQs کے ہیں وہ کون کون سے ہیں. اور جب ہم کوئی اسٹینڈرڈائز، یہ لفظ ہم بار بار سنتے آ رہے ہیں وہ ہے کہ اسٹینڈرڈائز آئٹمس، تو جو اسٹینڈرڈائز آئٹمس ہوتے ہیں یا MCQs ہوتے ہیں تو وہ جب بنانے ہیں ہم نے تو کون کون سے گائیڈ لائنس ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے. ڈے 2 پھر CRQ یا سپلائی آئٹمس پہ بات کریں گے، روبکس پہ بات ہوگی کہ یہ کسے کہتے ہیں، کس طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں. اور ڈے 3 جو ہے دیٹ از اباؤٹ ٹیبل آف اسپیسیفکیشن، جس کو TOS بھی کہتے ہیں، یعنی پیپر جب ہم سیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے TOS بنتا ہے. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے. پھر ریزلٹ انالیسس، کہ بچوں کے ریزلٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ان کی انالیسس کس طرح سے کرنی ہے. اور اگر آپ نے کوئی پیپر ڈیولپ کیا ہے تو اس پیپر کے آئٹم انالیسس کس طرح سے کی جاتی ہے تو اس پر بھی بات ہوگی. ایجوکیشنل ریسرچ پر بھی بات ہوگی کہ واٹ از ایجوکیشنل ریسرچ اور ڈفرنٹ ٹائپس آف ایجوکیشنل ریسرچ جو ہے تو وہ کون کون سے ہے. سو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس کہ MCQs کیا ہے اور اس کے ایلیمنٹس کیا ہے اور ان کے لیے گائیڈ لائنس کیا ہے. جس طرح کہ ڈے 1 پہ میں نے کہا تھا کہ ایک سلیکٹ آئٹمس جو ہے، کچھ سپلائی آئٹمس ہوتے ہیں، کچھ سلیکٹ آئٹمس ہوتے ہیں. جو سلیکٹ آئٹمس ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے MCQ ہے. بعض جو میچنگ والے کوشچنز ہوتے ہیں، میچ دا کالم والے، دے آر another type of select items. اس طرح سے جن کو الٹرنیٹیو ریسپانس کوشچن بھی کہتے ہیں، یس نو یا ٹرو فالس وغیرہ، ARQs ان کو کہتے ہیں، دے آر آلسو پارٹ آف دا سلیکٹ آئٹمس. لیکن اس سیشن میں ہم اسپیشلی بات کریں گے MCQs پہ، جہاں پر ہمارے پاس ملٹیپل چوائس کوشچنز ہوتے ہیں. سو MCQs پہ تفصیلی بات ہوگی. MCQs کے جو ایلیمنٹس ہیں یا پارٹس ہیں، دے آر 5. One is stimulus, another one is stem, next one is option, then key, and the other one is distractor. Stimulus جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہوتی ہے کسی بھی MCQ میں، یعنی آپ نے کوئی ڈائیگرام دیا ہوا ہے یا کوئی پیراگراف دیا ہوا ہے یا کوئی ایکویشن وغیرہ دی ہوئی ہے تو دیٹ از کالڈ دا اسٹیمولس. وہ اضافی انفارمیشن جس کے بیس پر پھر کوشچن ڈیولپ ہوتا ہے، جو کوشچن کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے دیٹ از کالڈ دا اسٹیم. اور جو ABCD جتنے بھی آپ کے پاس مختلف آپشنز ہوتے ہیں سو دے آر کالڈ آپشنز. ان میں سے جو صحیح جواب ہوتا ہے دیٹ از کالڈ دا کی، اور صحیح کے علاوہ جو کہ غلط آپشنز ہوتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے تو ان کو کہا جاتا ہے ڈسٹریکٹر. اب ایک مثال میں دیکھتے ہیں کہ میں نے جو باتیں کی کہ اسٹیم کی، اسٹیمولس، ڈسٹریکٹر، یہ اگر ہم ایک MCQ کے اندر فائنڈ کر لیں تو کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں. Look at this MCQ. 1 liter of water at 20 degrees centigrade is mixed with 1 liter of water at 60 degrees centigrade. یہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن تھی، یہ ایڈیشنل انفارمیشن تھی. جو ایڈیشنل انفارمیشن ہوتی ہے کسی بھی MCQ کے اندر دیٹ از کالڈ دا اسٹیمولس. اسی طرح سے اگر انگلش کے اندر آپ نے پیراگراف دیا اور پیراگراف کے بیس پر پھر نیچے کچھ MCQs ڈیولپ کر کے دیے تو وہ جو پیراگراف ہوگا تو اس کو اسٹیمولس کہا جائے گا. اسی طرح سے اگر میتھمیٹکس میں کوئی ڈائیگرام وغیرہ بنایا گیا یا کسی بھی دوسرے سبجیکٹ میں کوئی ڈائیگرام وغیرہ بنا دیا گیا یا کوئی بیک گراؤنڈ انفارمیشن دی گئی، سو دیٹ بیک گراؤنڈ انفارمیشن از کالڈ اسٹیمولس. اسٹیم جو ہے جو مین پرابلم ہوتی ہے، the main problem is called the stem. So main problem یا main question جو ہے that is the stem. Remember one thing, it isn't important that we must always have a stimulus. Mostly جو ہم دیکھتے ہیں MCQs کو تو وہاں پر ہمیں صرف stimulus ملتا، صرف stem ملتا ہے اور stimulus موسٹلی نہیں ہوتا. So it is possible کہ آپ کا ایک سینٹینس کا کوشچن ہو تو اس کے اندر شاید اسٹیمولس نہ ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی انالیٹیکل کوشچن دینا ہے تو اس کے لیے لازماً اسٹیمولس دینی ہوتی ہے. اگر فیکچوئل
MCQs देने हैं, यानी फैक्ट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन डेवलप करने हैं, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर जो MCQs बनते हैं तो उन पर स्टिमुलस नहीं होती। जहाँ पर एनालिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, बच्चे को सोचने को अपने पर मजबूर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर स्टिमुलस लाजमी होता है। Then all these are the options, whether true or false, all these are called the options, or they are also called the alternatives. जो सही आंसर है that is called the key, और जो wrong आंसर है, जो सही नहीं है, they are called the distractors. So every MCQ अगर standardized बने तो उसके अंदर at least जो है these 4 बल्कि 5 elements should exist over there. Remember one thing कि ये जो options होते हैं, option never ever try to keep 3. जब 3 options आप रखते हैं तो mostly जो mid वाली बात है, so the students click them. So at least it shouldn't be 3, 5, etc. It should be 2 or 4. अब देखते हैं कि अगर आपने एक स्टैंडर्ड या स्टैंडर्डाइज MCQ डेवलप करना है तो उसके फवाइद क्या होंगे। यानी जब आप MCQs की तरफ जाते हैं, बजाय इसके कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएं या लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो MCQ का फायदा क्या होगा। MCQ का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप डिफरेंट बच्चों के कॉग्निटिव लेवल्स को चेक कर सकते हैं विदाउट सब्जेक्टिविटी। विदाउट सब्जेक्टिविटी से मुराद ये है कि बच्चे के मेंटल लेवल को जांचने के लिए जो सवालात वगैरह दिए जाते हैं तो उनकी जो मार्किंग होती है तो वहाँ पर सब्जेक्टिविटी नहीं होती बल्कि ऑब्जेक्टिविटी होती है। सब्जेक्टिविटी इसे कहते हैं कि जब आपकी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स किसी क्वेश्चन के को मार्क करने में शामिल हो तो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिविटी, और जहाँ पर आपकी पर्सनल लाइकनेस एंड डिसलाइक ना हो तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। सो MCQs को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसी का वजह से कहा जाता है कि MCQs के अंदर मार्किंग में ऑब्जेक्टिविटी होती है। एक फायदा तो इसका ये है। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि अगर MCQs आप डेवलप करते हैं तो आप बहुत ज्यादा कंटेंट को कवर कर सकते हैं। यानी अगर एक लेसन से आप MCQs उठा लें, सो अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस देते हैं बच्चों को, so you cannot afford more than 5 to 10 short questions. लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह मोस्टली आपने देखा होगा 3 to 4, लेकिन MCQs you can make many MCQs on a single lesson also, as well as पूरा जो आपके पास कोर्स है तो उसमें आप बहुत ज्यादा MCQs बना सकते हैं। यानी एक ही लेसन के अंदर आप 5 से 10, 15 भी बना सकते हैं। इस तरह 4-5 अगर आपके पास लेसन्स हो या चैप्टर्स हो तो वहाँ पर आप 15-20 भी बना सकते हैं। दैट इज पॉसिबल फॉर यू। सो बहुत से जो आपके पास कंटेंट है उसको आप कवर कर सकते हैं थ्रू MCQ। एक और फायदा इसका ये है कि मोर क्वेश्चंस फ्रॉम वन लेसन, इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड कि आप एक जो लेसन है वहाँ से ज्यादा सवालात भी उठा सकते हैं एज कम्पेयर टू शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। Another important thing कि बाज़ औक़ात बच्चों की लिखाई अच्छी नहीं होती, सो MCQs उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप अगर नहीं भी लिख सकते लेकिन कंसेप्चुअली आप क्लियर हैं तो आप सिर्फ टिक कर लें या सर्कल कर लें, इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ यू हैव अटेम्प्टेड इट राइट। जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं सो वहाँ पे राइटिंग एबिलिटीज बच्चों की बहुत ज़्यादा मैटर करती है व्हेन दे आर राइटिंग समथिंग और व्हेन यू आर मार्किंग समथिंग। सो एटलीस्ट इसका फायदा ये है कि उन्होंने कुछ लिखना नहीं होता, सिर्फ चॉइसेस पर टिक करना होता है। पांचवा जो इसका फायदा है कि इसको आप बहुत जल्दी टिक कर चेक भी कर सकते हैं, और इवन जो OMR वगैरह ऑप्टिकल मार्क रीडर या कुछ और भी मुख्तलिफ तरीकों से इनकी मार्किंग हो सकती है, तो इट इज सो मच इजी टू मार्क देम और जल्दी भी हो जाता है। और इनके लिए टाइम बहुत कम चाहिए होता है। जो अगर आप एक सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन भी देते हैं तो एटलीस्ट 5 मिनट उसके लिए रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन यू कैन गिव 1 मिनट फॉर वन MCQ आल्सो। सो टाइम बड़ी तेजी से गुजरता भी है और बहुत कम टाइम के अंदर आप बहुत ज्यादा चीजों को कवर भी कर सकते हैं। नाउ These are some of the guidelines कि जब भी आप कोई MCQ डेवलप करें तो किन किन चीजों का ख्याल रखें। सबसे पहले whenever you are going to develop an MCQ,
रिमेंबर वन थिंग कि एक से ज्यादा कंसेप्ट्स को, एक से ज्यादा आइडियाज को, एक से ज्यादा कंटेंट को कभी भी एमसीक्यू के अंदर ना डालें। जब भी आप कोई आइटम डेवलप करें उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट या एक लर्निंग आउटकम जिसको एसएलओबी कहते हैं, या एक आइडिया जो है उसके अंदर आप लेकर आए, एक से ज्यादा आइडियाज उसके अंदर ना डालें, क्योंकि फिर वो मिक्सर बन जाता है, वो पर्पस जो है आपके का फिर गेन नहीं होता। अब इस मिसाल की तरफ देखें कि इस मिसाल के अंदर दो हमारे पास है एमसीक्यूज, एक है अनडिजायरेबल एमसीक्यू और एक है डिजायरेबल एमसीक्यू। कि जब भी आप कोई एमसीक्यू डेवलप करें तो सिर्फ एक लर्निंग आउटकम या एक कंसेप्ट हो उसके अंदर। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, if the length of a rectangle is 8 centimeter and width is 3 centimeter, then its perimeter will be 0.5 meter, 0.11, 0.22, 0.24। यहाँ पर हम सवाल के अंदर दो चीजें उनसे मांग रहे हैं। If you look at this question, if the length of a rectangle is 8 centimeter and width is 3 centimeter, और आंसर्स हमने उनको दिए हुए हैं मीटर के अंदर। अब बेचारा सबसे पहले ये कैलकुलेशन करेगा 8 और 3 को मल्टीप्लाई करके, फिर वो फर्दर जो है फिर वो कन्वर्ट करेगा सेंटीमीटर को मीटर में। सो अब हमारा मकसद क्या है, पर्पस क्या था? आया हमने उनसे कन्वर्जन मांगनी थी, या हमने उनको रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो मालूम करनी, वो हमारा मकसद था। अगर मकसद आपका ये था कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो उसके लिए बेहतर ये था कि आप यहाँ पर जो है डिजायरेबल, अब एमसीक्यू को देखो इसी को, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 3 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर विल बी 24 सेंटीमीटर। तो अगर रेक्टेंगल की बात थी तो फिर तो ये वाला ठीक था, लेकिन अगर आपने मीटर और सेंटीमीटर की कन्वर्जन करनी है तो फिर आपने इधर फार्मूला नहीं देना था, बल्कि सिंपल आपने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर देने थे और सेंटीमीटर को उनको कहना था कि ये जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू हमारे पास आएगी। सो व्हाट्स द मैसेज फॉर यू पीपल, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डेवलप एन एमसीक्यू, रिमेंबर वन थिंग, दैट देयर शुड बी ओनली वन कंसेप्ट और वन एसएलओ कवर्ड रादर देन टू मेनी, क्योंकि फिर आपको पर्पस का पता नहीं चलेगा कि आपने ये एमसीक्यू बनाया क्यों है। इफ यू रिमेंबर द लास्ट डे, वहां पर हमने डिस्कशन की कि जो पहला पॉइंट था सबसे पहले कि आपको ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी हो कि किस मकसद के लिए सवाल डेवलप कर रहे हो। तो यहाँ पर भी आगाज उसी चीज से है कि आपको मकसद का पता हो कि किस मकसद के लिए कर रहे हो, एंड दोज ऑब्जेक्टिव्स शुडंट बी मिक्स्ड टुगेदर, देयर शुड बी ओनली वन ऑब्जेक्टिव। The second guideline for you people, that you should express items as precisely, clearly and simply as possible. Mostly हम जो MCQ का स्टेम है तो उसके अंदर, MCQ की जो स्टेम होती है तो उसके अंदर इतनी ज्यादा चीजें डाल लेते हैं कि बच्चा उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा लेता है, या स्टेम के अंदर जो इतनी ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन थी उनको हम मुख्तसरन और कम से कम अल्फाज में दे सकते थे, दैट वाज पॉसिबल। सो व्हाट शुड वी डू, द लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स के अंदर हमने मैसेज को कन्वे करना है एमसीक्यूज के अंदर। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, वन इज an undesirable MCQ and the same one has been made a desirable one. Look at the undesirable one. Plants take in carbon dioxide from the air, then dissolve mineral salts from the soil to make glucose. Since they are able to make their own food and don't depend on animals for food, therefore they are called producers, primary producers, consumers, वगैरह वगैरह वगैरह. Now just focus on this one. Same idea has been explained precisely, clearly and simply and in the least possible words, that plants can make their own food through photosynthesis. ये मेन जो इतनी लंबी बात की गई थी तो उनको सिर्फ और सिर्फ चंद अल्फाज में बयान किया गया. Hence they act as producers, primary consumer, secondary consumers or decomposers. So whenever you are going to develop an MCQ, तो स्टेम के अंदर और स्टिमुलस
दोनों के अंदर लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स रख के इजाफी बातें और गैर जरूरी बातों से इज्तिनाब करें। थर्ड वन इज include all qualifications necessary to provide a reasonable basis for responding. Remember one thing, सबसे कमजोर क्वेश्चन वो होता है जो कि बच्चों को कंफ्यूज कर दे और बच्चे बार बार टीचर से फिर पूछे कि मिस और सर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं जवाब में क्या लिखूं। इफ यू रिमेंबर जो हमने गाइडलाइंस पढ़ी थी तो वहाँ पर ये बात मैंने कही थी कि जब आप सवाल डेवलप करें तो इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर लिखे उसके लिए कि टिक करना है कि सर्कल करना है कि क्या करना है। इसी तरह स्टेम के अंदर जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हो वो सारी की सारे बिल्कुल मौजूद हों, बच्चों को आपसे बार बार ना पूछना पड़े कि यहाँ पर हम क्या लिखें। अब यहाँ पे देखें तो एक डिजायरेबल और एक अनडिजायरेबल एमसीक्यू है। अनडिजायरेबल है द फेयर ऑफ one passenger from Peshawar to Islamabad is 190. How much fare will be of 8 passengers in rupees itna? Remember one thing, whenever you are going to develop an MCQ, it should be self-explanatory and it should be universal also. Self-explanatory से मुराद ये है कि उसके अंदर मैसेज कंप्लीट हो। यूनिवर्सल से मुराद ये है कि आप ज़हन में ना रखें कि सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए बना रहा हूँ, बल्कि किसी दूसरे स्कूल के बच्चे, बल्कि किसी दूसरे इलाके के बच्चे, किसी दूसरे मुल्क के बच्चे अगर उसी एमसीक्यू को अटेम्प्ट करें तो दे मस्ट बी क्लियर अबाउट द मैसेज। व्हाट्स रॉन्ग ओवर हियर, द फेयर ऑफ वन पैसेंजर फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद इज इतना। यहाँ पे नहीं लिखा गया कि ये 190 रुपीज़ हैं कि 190 डॉलर्स हैं कि ये कोई और करेंसी है, व्हाट्स कोई यन वगैरह है या what the other currency is it. So over here the child may be a bit confused. Now look at a desirable one. The fare of one passenger from Peshawar to Islamabad is rupees 190. The fare of 8 passengers will be rupees itna. Now the message is clear. यहाँ पर 190 मैं पाकिस्तानी हूँ, I will think is it rupees, अगर अफगानी हो तो अफगानी समझेगा और जापानीज हो तो अपने हिसाब से समझेगा, डॉलर अमेरिकन समझेंगे, लेकिन ओवर हियर यू कैन सी बिल्कुल क्लियर दैट इट इज रुपीज इतना एंड द आंसर इज रुपीज इतना। सो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन द स्टेम एंड द स्टिमुलस, कि बच्चों को आपसे बार बार ना पूछना पड़े कि 190 किलोमीटर है कि 190 रुपीज है कि 19 करेंसी है कि व्हाट इज दिस 190। नाउ another qualification we should think about, that there should be only one key or right answer. कभी भी ऐसा सवाल ना बनाए जिनके आंसर कीज जो हैं बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हों या दोनों ठीक हों, कि अगर एक को भी टिक कर ले तो वो भी ठीक है और दूसरा भी टिक कर ले तो वो भी बिल्कुल ठीक हो। हाँ, लीस्ट यानी करीब करीब हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो अल्फाज जो है यानी वो आंसर जो है दो जगह पर सेम यानी डिफरेंट अल्फाज आपने यूज किए हुए हैं और मतलब उनका एक ही है, सो ऐसे कम से कम आपने कीज को नहीं डालना। नाउ लुक एट दिस वन, इट्स एन अनडिजायरेबल वन एंड इट्स अ डिजायरेबल वन। व्हाट्स द डिफरेंस? स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। Now study of animals is called, अगर बच्चे ने zoology भी टिक कर लिया तो zoology भी ठीक है, अगर biology भी कर लिया, bio और zoology both are correct क्योंकि bio की सब ब्रांच है zoology। Now botany is okay, microbiology is okay। यहाँ पर बच्चा अगर ये भी टिक कर ले तो वो भी ठीक है और ये भी टिक कर ले तो वो बिल्कुल दोनों ठीक है। Now इसको बेहतर बनाया जा सकता है, if we write like this, study of animals is called zoology, botany, sociology and microbiology। दूसरी एक बात हो सकती थी कि अगर हम यहाँ से, बल्कि we have done this thing कि biology को हमने बीच में से हटा दिया है, so it's an undesirable one and this one is a desirable one क्योंकि it has been replaced biology with sociology। Now it's important,
کہ جو جارگن الفاظ ہوتے ہیں وی شوڈ اوائڈ دیز تھنگس. ناؤ واٹس مین بائی جارگن؟ عام طور پر جو ٹیکسٹ کے اندر الفاظ ہوتے ہیں تو ان کو کاپی پیسٹ کر کے ہم لکھ لیتے ہیں اور بیچ میں سے ایک لفظ نکال لیتے ہیں. وی شوڈ اوائڈ دیز تھنگس، کیونکہ اس میں پاسبلٹی یہ ہے کہ شاید بچے نے پورا کا پورا چیپٹر جو ہے وہ رٹا کیا ہو، یا وہ پوائنٹس جو ہے وہ انہوں نے رٹا لگایا ہوا ہو، ان کو زبان یاد ہے سب کچھ اور اسی فلو میں جا رہا ہے، تو جہاں پر ان کو ورڈ مسنگ آ رہا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ ورڈ وہاں پہ لکھ لے گا. ایم سی کیوز شوڈ بی کنسیپچول، یعنی ایگزیکٹ الفاظ کتاب سے یا ٹیکسچوئل مٹیریل سے نہیں لینے اور ایگزیکٹ سینٹینس نہیں دینا، کیونکہ if you look at this one, a person sitting in a moving bus falls forward when brakes are applied suddenly because of dash. Now انہوں نے ڈیفینیشن یاد کی ہوئی تھی کہ یہ فریکشن ہے، گریوٹی ہے یا انرشیا ہے، so he will write it over here. It should be rephrased کہ جو ٹیکسٹ بک کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں تو ان کو ریفریز کر کے سوال ڈیولپ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایگزیکٹلی الفاظ کو انہیں کو ریفلیکٹ کریں یا انہیں کو ریپیٹ کریں کسی کوشچن کے اندر. دیٹ از کالڈ جارگن، کہ آپ کوئی لٹریری ورڈ یوز کریں یا ایگزیکٹ ٹیکسچوئل الفاظ استعمال کر لیں. وی شوڈ اوائڈ دیز تھنگس. Another thing that whenever we are going to develop MCQs, irrelevant clues نہیں دینے، hints نہیں دینے. یعنی اگر آپ سوال ایسا خود ہی بنا رہے ہیں کہ اس کے اندر بچے کے لیے hints موجود ہیں کہ وہ آپشن 1 2 جو ہے وہ تو بالکل irrelevant آ رہے ہیں آپ کے پاس، تو 2 آپشن ان کے پاس رہ گئے تو ان 2 میں سے پھر وہ تکا لگائے گا کہ وہ آیا اے والا ہے کہ سی والا ہے. وٹ ایور ورڈ دیئر. Now if you look at this example, it will make clear to you کہ یہ irrelevant clue سے مراد کیا ہے. Z is a good boy. In the above sentence, good is a describing word, naming word, action word and joining word. Now ہم نے A لکھ لیا، جب A لکھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایکشن ورڈ کا آپشن کو ختم ہو گیا، کیونکہ اگر این ہوتا تو آٹومیٹیکلی ہمیں سمجھ آ جاتی کہ یہ ایکشن ورڈ ہی ہے. اب اے ہم نے لکھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ سی تو نہیں ہے، تو بچہ ان تینوں میں سے پھر گیس کرے گا کہ یہ والا ہے، یہ والا ہے کہ یہ والا ہے، اس کو بالکل اگنور کر لے گا. یہاں پر ہم نے ایک کلو دے دی. اب اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. if you look at this one, in the above sentence, good is a dash word, describing, naming, surprising اور joining. تو یہاں پر آ کے بعد یہ سارے کے سارے الفاظ آ سکتے ہیں. another thing remember کہ یہاں پر ریپیٹیشن ہو رہی ہے. اگرچہ ایک اور جب ہم گائیڈ لائنس کو پڑھ رہے ہوں گے تو جو اسٹینڈرڈائز ایم سی کیوز ہے تو ان کوالیفیکیشن میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ریپیٹیشن آف ورڈ شوڈ بی اوائڈیڈ. یہاں پہ دیکھیں ڈسکرائبنگ ورڈ، نیمنگ ورڈ، ایکشن ورڈ، جوائننگ ورڈ. It could be improved by writing in the above sentence good is a dash word اور describing, naming, surprising وغیرہ وغیرہ. یہ لفظ جو بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے اوپر والے جو اسٹیم تھی اس کے اندر لکھ لیا. سو irrelevant clues ہم نے نہیں دینے اور ریپیٹیشن irrelevant نہیں کرنی. Another thing that we should always use plausible distractors. پلازیبل کہتے ہیں، پلازیبلٹی کہتے ہیں، ریزنیبل کو کہتے ہیں، معقولیت کو کہتے ہیں، کوئی معقول الفاظ بھی ہو. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے الفاظ بنانے ہیں یا آپ نے آپشنز دینے ہیں. تو موسٹلی جو 4th نمبر آپشن ہوتا ہے دیٹ از جنہوں نے آئٹمس ڈیولپ کیے ہیں دے نو کہ 1 2 اور 3 آپشن بڑی آسانی سے بن جاتے ہیں، لیکن 4th نمبر کبھی بھی نہیں بن پاتا. بڑی مشکل سے بنتا ہے 4th نمبر آپشن جو ہے جب آپ ایم سی کیوز ڈیولپ کرتے ہیں. تو پھر اس کو فل کرنے کے لیے ہم اپنی طرف سے کوئی ایسا لفظ لکھ لیتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو. یعنی اگر KEEN کین ہو تو ہم آگے لکھ لیتے ہیں مین MEEN. اب مین لفظ سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرنا، لیکن صرف وہ ہم قافیہ بنانے کے لیے الفاظ لگا لیتے ہیں. تو ایسے الفاظ کو اوائڈ کرنا ہے جن کی ایگزسٹنس نہ ہو. ایسے الفاظ کو بالکل ایڈ نہیں کرنا جو بالکل غیر معقول سے الفاظ ہوں یا جو ایگزسٹ نہ کرتے ہو، جو عام استعمال میں نہ ہو. مثال کے طور پر the superlative degree of beautiful is more beautiful. Okay, beautifuler
नाउ अगर आप देखें तो जो एडजेक्टिव्स की मुख्तलिफ डिग्रीज है तो उसके सेंस में तो ऑल राइट, ब्यूटीफुलर एंड ब्यूटीफुलेस्ट, लेकिन अगर रियल सेंस में हम देखें तो ये अल्फाज एग्जिस्ट ही नहीं करते। न ब्यूटीफुलर लफ्ज एग्जिस्ट करता है, न ब्यूटीफुलेस्ट एग्जिस्ट करता है, और मोस्ट ब्यूटीफुल। नाउ these things should be avoided. These are called not plausible distractors at all. These are called plausible distractors, maful jinko kehte hain. The superlative degree of little is, sorry, we have written it little over here, it should be read as beautiful. Beautiful is more beautiful, most beautiful, beautiful, and least beautiful. Now all these are the words which are reasonable, so we should use reasonable words in the options. Another thing to be kept in mind कि आमतौर पर हम लिख लेते हैं all of the above and none of the above, यानी आपने ऑप्शन 1, 2 और 3 तो दे दिया या ABC तो दे दी, फोर्थ नंबर आपके पास नहीं बनना, जिस तरह कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि मोस्टली बड़ा मुश्किल होता है फोर्थ नंबर ऑप्शन। सो हम अपने आप को छुड़ाने के लिए लिख लेते हैं ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। एक तो ये पर्पस है कि अपने आप को छुड़ाना, दूसरा पर्पस ये है कि बाज़ औक़ात हम वाकई वो दे देते हैं कि ऑल ऑफ द अबव। अब ऑल ऑफ द अबव से मुराद ये है कि ए बी सी तीनों ठीक थे, तो ए भी ठीक, बी भी ठीक और सी भी ठीक। जब तीनों ठीक है और आप फोर्थ नंबर में आपने ऑल ऑफ द अबव दे दिया, तो बच्चे ने अगर ए भी टिक कर लिया तो वो भी आंसर ठीक है, बी भी टिक कर लिया तो वो भी आंसर ठीक है, सी भी टिक कर लिया तो वो भी ठीक है, और ऑल ऑफ द अबव कर लिया तो वो भी ठीक है, क्योंकि वो पहले वाले पे पहुंचा ए पर या 1 पे। वहां पर आपने देखा कि जब ए पर बच्चा पहुंचा तो ए पर बच्चे ने जो ही देखा कि आंसर उनके पास टी का रहा है तो उसी को उसने टिक कर लिया, बी और सी की तरफ या डी की तरफ गया ही नहीं। जब वहां पर गया ही नहीं, सो यू कैन नॉट से दैट ही वाज रॉन्ग, नो ही वाज राइट ओवर देयर, क्योंकि ए पर पहुंचकर वो आंसर ठीक था, सो इट शुड बी कंसीडर्ड एज राइट देन। Now look at this one. It may rain today. This sentence shows fact, opinion, both A, B, or none of the above. It should be avoided. Now it can be said that it may rain. This sentence shows fact, opinion, advice, or command. So the last thing is that we should keep the alternatives similar in length. Similarity and length से मुराद ये है। Now look at this example. The sun is a star which is far away from the earth. 5 words. Almost 1 million times bigger than the earth. इसमें देखें तो more than 7 to 8 words हैं। C नंबर में आपके पास 3 words आ रहे हैं और D में आपके पास just 2 words आ रहे हैं। Remember one thing कि आपने options के अंदर least possible words रखने हैं, कम से कम अल्फाज। अगर लेंथ ज्यादा भी है तो उनके अंदर जो लेंथ है it shouldn't vary that much like this one. Now look at this example, जो desirable one है। The sun is a star which is far away from the earth, bigger than the earth, revolves around the earth, colder than the earth. Now over here you can see कि हर एक में 4 अल्फाज हैं। Far away should be taken as one word. Far away from the earth, bigger than the earth, revolves around the earth, and colder than the earth. Now these were some of the qualifications which we should consider while developing or constructing an MCQ. अब let's conclude कि जो standard MCQ होगा तो उसके अंदर क्या क्या बातें होंगी, उसका स्टेम बिल्कुल क्लियर होगा। As we said over there shouldn't be any ambiguity. It should be clear. Only one idea or concept should be assessed. Only one SLO, one concept, one idea should be over there. Same length, tense and sequence be used. Remember one thing, अगर आप verb options आपके पास verbal form में आ रहे तो verb भी होने चाहिए, अगर nouns है तो nouns होने चाहिए।
वन नाउन से मुराद ये है कि जो भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सो देयर शुड बी सिमिलरिटी एंड होमोजेनिटी। इसी तरह से लॉजिकल सीक्वेंस उसकी होनी चाहिए, क्योंकि अकल उसको भी एक्सेप्ट करे। जिस तरह के जार्गन का लफ्ज हमने सॉरी और प्लाजिबल डिस्ट्रैक्टर्स का हमने लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मस्ट बी मेंटेन। एक है लॉजिकल और एक है क्रोनोलॉजिकल, यानी अगर आप 1 3 5 7 दे रहे हैं, इट्स ओके। इट शुड ईदर बी इन द असेंडिंग और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी 2 4 6 8 आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो बजाय इसके कि 2 लिख लो, फिर 8 लिख ले, फिर 4 लिख ले, फिर 6 लिख ले, इट इजंट अपीलिंग देन। नो, 2 4 6 8 और 8 6 4 2, इस तरह से आप लोगों ने ऑप्शन देने हैं। क्योंकि जब आप ये लॉजिकल ऑर्डर या लॉजिकल सीक्वेंस नहीं देते और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मेंटेन नहीं रखते, तो वहां पर भी बच्चों के पास हिंट्स आ जाते हैं। यानी अगर एक है 1947, फिर है 57, फिर है 67, फिर है 77, ये नहीं करना कि 1947 57 67 और आखिर में आपने 97 दे दिया। नो, इट शुड हैव अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस और ऑर्डर। We have already discussed that we should avoid all of the above और none of the above. बैलेंस द की से मुराद ये है कि ए बी सी डी हम जो मुख्तलिफ ऑप्शंस देते हैं, सो अपनी ईज के लिए नहीं कि पहले 3 सवाल जो होंगे तो उनके आंसर ए होंगे, फिर नेक्स्ट के सारे बी होंगे, फिर नेक्स्ट 3 के सी होंगे, फिर नेक्स्ट 3 के जो है डी होंगे। नो, इसमें वैरायटी होनी चाहिए। कहीं पर ए आ रहा है तो नेक्स्ट वाले में सी, फिर में बी, फिर में डी, फिर में ए, इस तरह से दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग द की। और जो एंड रिजल्ट होगा, तो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज जितने भी होंगे उनमें से आपने अगर 3 ऑप्शंस है तो 33% शुड बी मेंटेन इन एबीसी। अगर 4 ऑप्शंस आपके पास है सारे के सारे एमसीक्यूज में, 25% शुड बी ए, 25% शुड बी बी, 25% शुड बी सी, 25% शुड बी डी। सिंपल में आसानी से समझा दूं, अगर 12 सवाल हैं, 12 एमसीक्यूज हैं, तो 3 के आंसर्स आपके पास ए होने चाहिए, 3 के बी होने चाहिए, 3 के सी होने चाहिए और 3 के डी होने चाहिए। इस तरह से अपने आपने 25% को मेंटेन कर दिया। अनदर थिंग कि कभी भी इस तरह के जवाबात ना लिखे, बच्चों को कंफ्यूज ना करें कि आपने आंसर ए दे दिया, आंसर ए इसका आ रहा है जी 1 2 3, बी है 1/3, सी है 2 and 4। अब बेचारा वो जो क्वेश्चन था तो उस पर इतना ज्यादा नहीं सोचेगा, बल्कि इधर ही कंफ्यूज होगा कि 1 2 3 है कि 1 3 है कि 2 4 है। सो अवॉइड दीज थिंग्स। एंड another thing is that include only one correct or best answer, जहाँ जो हमने zoology और botany और biology के एग्जाम्पल में देखी। अननेसेसरी रिपीटेशन को अवॉइड करें, जिस तरह की हमने वर्ड का देखा था कि वर्ड को बार बार रिपीट किया जा रहा था, so we should avoid unnecessary repetition. Now this short session is about how to identify relevant SLOs या SLOs के बेस पर किस तरह से क्वेश्चन या आइटम्स बनते हैं। Now if you look at this item, this is the question, which of the following word is a pronoun? अली है, ही है, जैद है या पाकिस्तान है, तो इनमें से प्रोनाउन कौन सा है? Now these are different SLOs, ये SLOs हैं। तो इनमें आप देखें कि proofread and edit text for errors of noun pronoun agreement. So which of the following a word is a pronoun? ये SLO इसके अंदर कवर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट SLO है identify and correctly pronounce pronouns। तो हम प्रोनाउंस की प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर असिस्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये आइटम या ये क्वेश्चन जो है इस SLO पर भी नहीं बना। आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर उनको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला है। Now if you look at this question, which of the following words is a pronoun? Which of these one? तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करके देना है। So as pronoun is a part of speech, so we can say that this item has been developed on this one. अगर identify and correctly pronounce वाला होता SLO, तो उसके लिए हम आइटम बनाते कि ये जो नीचे दिए गए अल्फाज हैं तो इनको सेलेबल फॉर्म में लिखें, नंबर 1 अगर लिखने में होता।
दूसरा ये होता है कि हम उनको बच्चों से जो है वर्बली कहते हैं कि बच्चे आप जो है इनको प्रोनाउंस करके बता दें कि अल्फाज कौन कौन से है, तो हम उस तरीके से उनको असेस कर सकते थे। अगर ये स्लो है कि प्रूफ रीड एंड एडिट टेक्स्ट फॉर एरर्स ऑफ नॉन प्रोनाउन एग्रीमेंट, तो हम कोई टेक्स्ट देते और बच्चों को कहते कि बेटा, और क्वेश्चन उसके लिए होता है कि आप इनको पढ़कर आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पर नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट जो है वो ठीक नहीं है। अगर यूज मोर प्रोनाउन वाला स्लो है तो इस पर आप जो सवाल बनाएंगे, वो क्वेश्चन जो बनाएंगे, तो वो ये होगा कि ये यू मस्ट प्रोवाइड देम विद सम प्रोनाउंस, और बच्चों से कहे कि आप इनको जुमले में इस्तेमाल करें, या कोई जुमला देते और उसके अंदर देते कि ये प्रोनाउन सही तरीके से इस जुमले के अंदर इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो एमसीक्यू बन जाता फिर। Another one, now इस कहने का मतलब ये है कि you should look at the words or the wording or the command words or verbs of the SLO, और उसी के बेस पर फिर हमने क्वेश्चंस बनाने हैं, चाहे एमसीक्यू बनाए या चाहे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनाए। अब मैथमेटिक्स की एक एग्जांपल है, इन रेगुलर हेक्सागन ईच एंगल इज इक्वल टू कितने के बराबर है? 90, 108, 120 और 135। In regular hexagon, each angle is equal to। ऐसे लो ये है कि construct a regular hexagon with a side given। तो यहाँ पर हमने कोई साइड नहीं दिया और उनको बच्चों को नहीं कहा कि आप अब इसको इस्तेमाल करते हुए, कंसिडर करते हुए हेक्सागन बनाए, तो ये ऐसे लो तो इसके लिए नहीं है। Circumscribe a regular hexagon about a given circle, तो यहाँ पर कोई सर्कल भी नहीं दिया गया कि जिसके अगेंस्ट वो सर्कमस्क्राइब करे। नेक्स्ट वन इज डिफाइन रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन एंड ऑक्टागन। Define regular pentagon, hexagon and octagon. In regular hexagon, each angle is equal to this one or this one. Now over here you can see it is definition of the hexagon. So partly ये SLO जो है इसके अंदर कवर हो रहा है इस आइटम के अंदर। अगर है inscribe a regular hexagon in a given circle, तो ना हमने सर्कल दिया हुआ है और ना हमने बच्चे से इंस्क्रिप्शन मांगी है। Over here also you might have developed the understanding, जिनकी करिकुलम से ज़्यादा वाकिफियत नहीं है, कि how to develop items or MCQs on the basis of SLOs। जब भी आप कोई SLOs डेवलप करें तो उसके लिए जो फॉर्मेट है, असल में ये फॉर्मेट मैं इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि मुनासिब मौके पर कल या परसों मैं आपको आइटम बैंक का कुछ कंसेप्ट देने वाला हूँ कि आइटम बैंक्स डेवलप किस तरह से होते हैं, उनको मेंटेन किस तरह से किया जाता है। सो वो आइटम बैंक जो डेवलप होते हैं तो उनके लिए MCQs के लिए फॉर्मेट है, क्योंकि ऑल ऑफ यू आर माशाल्लाह प्रोफेशनल्स। शायद आपको फ्यूचर में मौका मिले कंसल्टेंसी किसी कंसल्टेंट के साथ काम करने का या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने का, तो उनके लिए अगर आप आइटम बैंक बनाते हैं, MCQs या शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पर ये जो फॉर्मेट्स हैं दे विल हेल्प यू, और इनको इस्तेमाल फिर किस तरह से करना है वो भी मैं आपको कल या परसों मुनासिब मौके पर बता दूंगा। जब भी आप MCQs बनाएं तो जिस तरह के ये एक पेज आपके सामने डिस्प्लेड है, तो इसी तरह से एक पेज पर जो है यू हैव टू डेवलप एन MCQ। इस तरह से इसे लो लिख के यहाँ पर कि कौन सा इसे लो है, और ये जो दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए इसीलिए दिए कि वो आपको क्लियर हो कि इस लो के आइटम्स किस तरह से बनते हैं। फिर स्टिमुलस अगर रिक्वायर्ड है तो रिमेंबर वन थिंग, जिस तरह कि मैंने शुरू में कहा, जो फैक्चुअल MCQs होते हैं तो वहाँ पर मोस्टली स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती कि हमने फैक्ट्स ही मांगे हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं पाकिस्तान केम इनटू बीइंग एंड व्हेन, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए फिर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। या यू नो कब इस्टेब्लिश हुई, तो अगर आपने इस तरह से कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुतालिक कोई MCQ वगैरह डेवलप करना है तो उसके लिए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती। सिंपल वो सेंटेंस देखकर वो डेट्स वगैरह, वो ईयर वगैरह या उस बंदे का नाम वो रिक्वायर्ड होता है। लेकिन जहाँ पर कंसेप्चुअल लर्निंग हो, जहाँ पर एनालिटिकल लर्निंग हो, so over there we need a stimulus। तो यहाँ पर stimulus, then the item or the question
कंप्लीट क्वेश्चन, अगर एमसीक्यू का है तो कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, स्टेम प्लस ऑप्शंस, सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर आपने मजीद जो है एक एडिशन एक कुछ इंफॉर्मेशन देनी है कि इसका इस क्वेश्चन का आंसर की कौन सा होगा, ए है, बी है या सी है। ब्लूम कैटेगरी से मुराद ये है कि कॉग्निटिव लेवल इसका क्या है। कॉग्निटिव लेवल ये नॉलेज का है, कंप्रहेंशन का है कि एप्लीकेशन का है। तो अगर नॉलेज का हो तो मोस्टली हम उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं के, कंप्रहेंशन के लिए सी और एक एप्लीकेशन के लिए ए। तो अगर नॉलेज लेवल का क्वेश्चन है तो के यहाँ पे लिख ले, अगर कंप्रहेंशन लेवल का क्वेश्चन है तो सी लिख ले, और अगर एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है तो ए लिख ले यहाँ पर। डिफिकल्टी लेवल क्या है, आया ये इजी है, मॉडरेट है या डिफिकल्ट है, जो क्वेश्चन आप डेवलप करते हैं। सो अगर वो इजी हो तो यहाँ पर ई लिख ले या इजी, अगर मॉडरेट है तो मतलब दरमियाना है सो एम लिख ले, अगर डिफिकल्ट आइटम हो तो उसके लिए डी लिख ले। इस तरह यूनिट नेम अगर लेसन से आपने लिया हुआ है किसी भी टेक्सचुअल मटेरियल से तो उस यूनिट का नाम लिख के कि फला सबक से मैंने लिया हुआ है, ये एमसीक्यू बना लिया है। रेफरेंस से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात हम कोई बुक वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, नेट वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, या टेक्सचुअल मटेरियल के अलावा किसी और सोर्स से हम एमसीक्यू उठा लेते हैं, तो वहाँ पर आपने रेफरेंस लाजमन कर देना है। रिमेंबर वन थिंग इन योर लाइफ, जो चीज़ आप कहीं से भी लें तो उसका रेफरेंस लाजमन आप नोट भी कर लिया करें, जहन में भी बिठा लिया करें। यानी इवन इफ अ कोटेशन आप किसी बंदे की देते हैं, तो बजाय इसके कि मैंने सुना था कि किसी की कोटेशन है, तो बजाय इसके कि अगर आप उस बंदे का नाम लेकर कहें कि फलां की ये कोटेशन है, इट विल गिव अ वेरी गुड impression. So whatever you take, whether from the internet, from any other source, you have to mention the reference here. इसका फायदा क्या होगा, इसी को आइटम बैंक कहते हैं कि आपने 50-60 MCQs डेवलप कर लिए। नाउ उन 50-60 से आपको ब्लूम के कॉग्निटिव लेवल के इतने सवाल चाहिए, डिफिकल्टी लेवल के इतने चाहिए। सो ओवर देयर जब आप वहां से फिर मुख्तलिफ एमसीक्यू यानी 50-60 से आपने 15 उठाने हैं मिसाल के तौर पर। सो 15 जो आप उठाएंगे तो 15 में से 5 नॉलेज के उठा लें, 5 कंप्रहेंशन के उठा लें, 5 एप्लीकेशन के उठा लें। इस तरह डिफिकल्टी लेवल है तो 5 इजी को उठा लें, 5 मॉडरेट और 5 डिफिकल्ट उठा लें। सो ये जो इजाफी क्वेश्चंस आपके पास होते हैं इनको आइटम बैंक कहते हैं, और मुनासिब मौके पर जिस तरह मैंने कह दिया वो तफसील में उस पर बात होगी। So this session was about MCQs, how to develop MCQs and what cares to be taken while developing MCQs. कल we are going to discuss CRQs और rubrics किस तरह से डेवलप करते हैं, उनकी अहमियत क्या है वगैरह, कल इस पर बात होगी। Now if you have any question you can ask me.